Now we shall discuss organometallic compounds. This will be the last portion of this chapter, and after this the chapter will be over. So let us focus on now on organometallic compounds. So right, organometallic compounds, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब हो गया ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑर्गेनिक और मेटलिक दोनों पार्ट हो. ऑर्गेनिक पार्ट मतलब कार्बन हो गया और मेटलिक पार्ट मतलब मेटल हो गया. तो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट प्लस मेटलिक पार्ट. इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज ऑर्गेनिक पार्ट, द अदर इज मेटलिक पार्ट. मेटलिक पार्ट मतलब कोई मेटल हो गया और ऑर्गेनिक पार्ट मतलब कार्बन हो गया. तो दे आर ऑफ टू टाइप. Organometallic compounds are of two types. Number one, ionic organometallic compounds, OMC. Ionic organometallic compounds. For example, its famous example is Grignard reagent or MgX. You have already read that in organic chemistry at many places. Grignard reagent. So this is example ले लूँ CH3 MgCl. इस पे negative charge, इस पे comparatively positive charge. Negative charge. So this is organic part and this is metallic part. So that will be termed as organometallic compound. For example, sodium acetylide, CH, C, Na+, C negative. जब एसिटाइलिन की रिएक्शन जो है सोडियम के साथ होगी, सोडियम एसिटिक हाइड्रोजन को हटा देता है और खुद आके उसकी जगह पर रिप्लेस हो जाता है. तो इट फॉर्म्स सोडियम एसिटाइलाइड. So this is also a organometallic compound, but they are ionic organometallic compounds since the ionic bond has been formed. Here also the major portion is ionic bond. इसमें covalent character भी होता है, but the majority it is a ionic. It consists of ionic character. Here also it consists of majorly ionic character. Therefore, they will be termed as ionic organometallic compounds. Those compounds in which the organic and metallic part both are present and they are mainly of ionic nature are called as ionic organometallic compounds. Now covalent OMC, organometallic compound. कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. जहां तक कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का सवाल है, कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर मेनली कोवलेंट बॉन्ड is formed between, mainly covalent bond is formed between metal and carbon. Metal and carbon. मेटल एंड कार्बन के बीच में जो मेन बॉन्ड बनेगा वो मेनली जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है. ये भी दो टाइप के होते हैं, टू टाइप्स. सिग्मा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, sigma organometallic compounds when sigma bond is formed between metal and organic part, for example tetraethyl lead. For example tetraethyl lead. So this is sigma organometallic compound when sigma bond is formed between the carbon and the metallic part. Pi organometallic compounds,
In this, the pi electron density participates in the formation of coordinate bond. In this, the pi electron density participates in the formation of covalent bond or formation of coordinate bond. The pi electron density participates in formation of coordinate bond. For example, Z salt. If you remember Z salt, that was Pt Cl3 C2H4. Like this. In this pi electron density is going towards the Pt, and also at this time the anti bonding molecular orbital के साथ इसमें एक और बॉन्ड बनना एक्चुअली थोड़ा शुरू होता है, जिसके कारण ये बॉन्ड लेंथ जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है CS2 भी, जो मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में, मेटल कार्बोनेल ऐसे ये बॉन्ड लेंथ कम होती है. नाउ देयर इज वन मोर एग्जांपल जो मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड दैट वाज ऑफ फेरोसिन एंड डाइक्रोमियम बेंजीन. डाइक्रोमियम बेंजीन में मैंने आपको बताया था सैंडविच स्ट्रक्चर होता है. इसका EN नंबर निकालते हुए आपने ये बात सीखी है, EN वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं. दिस इज डाइक्रोमियम बेंजीन. In this also pi electron density is transferred to coordinate bond. Then if you remember this example, this is ferrocene. This is ferrocene. Cyclopentadienyl, base cyclopentadienyl iron. Base cyclopentadienyl iron. This is ferrocene. Very important examples as far as the exam is concerned. Note it down. And thereafter comes the last one, the sigma and pi bonded OMC organometallic compounds. इसके एग्जाम्पल होते हैं मेटल कार्बोनेट्स. मेटल कार्बोनिल में दिस इज MCO टाइप कुछ होता है. मेटल कार्बोनिल मतलब वहां मेटल होता है और कार्बोनिल पार्ट होता है, तो वो भी दो टाइप के होते हैं, एक मोनोमेरिक और एक पॉलीमेरिक. मोनोमेरिक में मोनोमेरिक मेटल कार्बोनिल्स, मोनोमेरिक मेटल कार्बोनिल्स में मेटल होगा पर मॉलिक्यूल only one metal is present. Example,
FeCO5 याद करो, पेंटा कार्बोनिल आयरन, आयरन के बाद 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे 36, 36 वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर। निकेल टेट्रा कार्बोनिल याद करो, क्लियर। FeCO5 में स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पे, sp3d या dsp3 वो आपको निकाल के देखना है। आप Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करवाएगा, पेयरिंग करवा के जहां तक है हो सकता है dsp3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, वो बीबीटी में आप लोग सीख चुके हो, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। NiCO4 में आप देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, अब जैसा भी हाइब्रिडाइजेशन हो, बट इसका शेप जो है कुछ, यदि हाइब्रिडाइजेशन इसका जो है NiCO4 में यदि हाइब्रिडाइजेशन आया dsp2 टाइप तो उसमें हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर, और यदि हाइब्रिडाइजेशन आया sp3 टाइप तो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब वो आपका निकालना काम है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसके प्रेजेंस में क्या होने वाला है, पेयरिंग होगी या नहीं होगी, दैट यू शुड नाउ बी एबल टू कैलकुलेट। 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल, और यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन अंदर उतरेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए एज फार एज आई एम थिंकिंग। ये है देखो D 1 2 3 4 और एक और 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 4s भी भरा हुआ है क्योंकि इस पे चार्ज वास तो कोई है नहीं। जब पेयरिंग होगी तो ये इधर आएगा और ये दोनों इधर आ जाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया तो इसका मतलब क्या करेगा, निकेल एक कार्बोनिल इधर, एक कार्बोनिल इधर, एक कार्बोनिल इधर, एक कार्बोनिल इधर, इसका मतलब शेप कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दिस अ लॉट, सो आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल ऑफ दिस थिंग, बट दे आर कॉल्ड एज मोनोमेरिक कार्बोनिल्स। अब मैं आपको मोनोमेरिक कार्बोनिल्स में एक स्पेशल पॉइंट बताता हूं, दैट इज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है, and that is the main thing that you should discuss in the metal carbonyl compound beside drawing the structures of polymeric metal carbonyl structure, that is also. So now I will discuss with you about metal carbonyls. Now see this, जहां तक मेटल कार्बोनिल में एक इफेक्ट होता है जिसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, जिस पे ज्यादा क्वेश्चनिंग है, आप देखें जरा। सबसे पहले कार्बोनिल के स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करते हैं। कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ऑक्सीजन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर सकता है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, उसको 2 की जरूरत है, तो वो 2 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड, एक सिग्मा और एक पाई बना। ठीक ना, एक बार इसने यहाँ पे सिग्मा पाई बॉन्ड बना लिया, पर ये कार्बन अभी भी दुखी है क्योंकि इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 थे, 2 बॉन्डिंग में चले गए, 1 2 3 4, 2 इससे शेयर कर रहा है, और 5 6। ये जो है ऑक्सीजन, इसका ऑक्साइड कंप्लीट हो चुका है, ये जो है इसको कोई टेंशन नहीं है, बट ये कार्बोनिल जो है इसको टेंशन ही टेंशन, इसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस ओर ट्रांसफर करेगा, एंड दिस इज अ पाई बॉन्ड, बिकॉज़ थर्ड बॉन्ड फॉर्म और द सेकंड बॉन्ड फॉर्म इज ऑलवेज अ पाई बॉन्ड, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म इज अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ ये इधर से इधर की ओर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, डोनर साइड कार्बन वाली हो जाएगी, क्योंकि लोन पेयर किस साइड पे अवेलेबल है, कार्बन पे अवेलेबल है, ऑल्दो ऑक्सीजन पे भी अवेलेबल है, बट मोर बेसिक साइड कौन सी है, कार्बन है, तो डोनर साइड कौन सी होगी, कार्बोनिल वाली साइड, सी वाली साइड जो है वो डोनर साइड होगी। नाउ लेट मी आल्सो टेल यू, ओके, अब ठीक है, अब आ रही है आवाज अच्छी, ओके। नाउ यहां पे मैं आपको कार्बोनिल का स्ट्रक्चर बता रहा था, तो इस साइड से डोनेशन होगा। अब देखें आप जरा से, मान लो, अच्छा एक चीज और मैं आपको याद दिलाऊं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, और दो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के अंदर ही आप ये पढ़ते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया रहता है हमको, तो मैं आपसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में एक छोटी सी बात करता हूं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे भरते हैं। 14 इलेक्ट्रॉन तक तो हम ऐसा चलता है एनर्जी लेवल। फिलहाल आपको इधर ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि इनके नाम क्या है क्या नहीं है, आप तो फिलहाल से इतना देखो कि ये रहा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये रहा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये अगेन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल,
ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 और ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक और। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। नाउ इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब हम भरते हैं, जैसे कार्बोनिल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर रहे हैं, ऑब्वियसली वी विल रीड दैट इन चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इन अ ग्रेटर डिटेल। तब तक मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एक टर्म इधर आएगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो एग्जैक्टली कहां आता है उसका मैं आपको एक पिक्चर देना चाहता हूं। नाउ सी दिस, कार्बोनिल में टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 14, कार्बन में 6 और ऑक्सीजन में 8, तो 8 6 प्लस 14। अब इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इलेक्ट्रॉन इधर यूं भर दिए। पर इसके अभी भी ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं। अब आप ध्यान, जब आयरन को कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू सिग्मा बॉन्ड इधर ट्रांसफर करेगा, उसी वक्त क्योंकि इसके डी ऑर्बिटल्स में आप देखें और भी कार्बोनिल यहां पे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां भी इलेक्ट्रॉन्स काफी है, मतलब इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन काफी कुछ है। तो ये क्या करेगा, इसी समय इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया जो कि यहां पे दिख रहा है आपको, इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर ट्रांसफर करेगा। अब आप समझना जरा, इधर बना हुआ है ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से। अब सुनना आप इस बात को, यदि बेटा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गया तो आप ध्यान करें, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यहां पे इलेक्ट्रॉन फिलहाल है बॉन्डिंग में 2, बॉन्डिंग में 2 और 6, तो 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 बराबर 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ रहा 3, इसलिए देखो उसके बीच में 3 बॉन्ड बने हुए। पर यदि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इधर से इधर की ओर ट्रांसफर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, एंटी बॉन्डिंग में आएंगे, और यदि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आए तो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, और यदि एंटी बॉन्डिंग की मात्रा बढ़ी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, गिरेगा। इसका मतलब सी और ओ के बीच में बॉन्ड ऑर्डर गिरने का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड गिरना, और नंबर ऑफ बॉन्ड गिरने का मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ का कम होना। समझे ना बात को। यदि Fe एक अच्छा डोनर की तरह एक्ट करे और वो इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, तो ये वाला बॉन्ड तो मजबूत होगा पर ये वाला बॉन्ड कमजोर हो जाएगा। मतलब यदि Fe पे +3 चार्ज है और Fe पे +2 चार्ज है, और कोई दो का कंपैरिजन करने की पूछे, कीपिंग ऑल द फैक्टर्स एज कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट कर दे, और आपसे ये बोले कि बताओ किस केस में ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है और किस केस में ये वाला बॉन्ड ज्यादा मजबूत है। Fe के ऊपर जब +3 चार्ज है तो Fe अपने इलेक्ट्रॉन देने से कंजूसी करेगा, तो वो इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं करेगा। जब इस ओर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर नहीं करेगा तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम आएंगे, यदि कम आया तो ये बॉन्ड मजबूत बना रहेगा और ये वाला बॉन्ड वीक रहेगा। तो जब Fe+3 होगा तो ये जो X बॉन्ड है ये कम मजबूत होगा, ये Y बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। बट जब Fe+2 है या Fe 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, FeCO5 में, तो उस केस में ये अच्छा डोनर की तरह एक्ट करेगा। और मान लो Fe के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उस केस में तो और भी अच्छा डोनर की तरह काम करने लग जाएगा। ऑल्दो नेगेटिव चार्ज जनरली नहीं आता सेंट्रल मेटल एटम में, बट इन फ्यू ऑफ द केसेस द नेगेटिव चार्ज मे कम। हम जो एग्जाम्पल अब तक आपने पढ़े उसको लेके मैं बात करता हूं। जैसे कि Fe न्यूट्रल है और जैसे कि Fe के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जब Fe न्यूट्रल है तो वो खूब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या ज्यादा उसमें टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल की तरफ ट्रांसफर करने की, जिसके कारण कार्बोनिल के बीच का बॉन्ड ऑर्डर गिर जाएगा, जिससे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जबकि जब Fe के ऊपर +3 चार्ज होगा उस समय वो चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस तरफ ट्रांसफर नहीं करेगा, इस वजह से C और O के बीच का बॉन्ड तो मजबूत बना रहेगा, पर मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड उतना मजबूत नहीं होगा। Now I hope you have understood that. This effect in which the electron density is transferred through the ligand to the central metal atom and from the central metal atom to the ligand is called as synergistic effect. तो इसको बोलते हैं synergistic effect. Now you can write. लिखना, in case of metal carbonyls, in case of metal carbonyls, the carbonyl acts as a ligand, the carbonyl acts as a ligand and donates
electron density and donates electron density or donates lone pair to the central metal atom, CMA. At the same time, central metal atom also donates electron density into the anti-bonding molecular orbital of carbonyl. However, since the electron enters into ABMO, anti-bonding molecular orbital, electron enters into ABMO, anti-bonding molecular orbital, the bond order of carbonyl decreases. The bond order of carbonyl decreases. And therefore, the bond strength becomes weak, and therefore the bond strength between C and O, becomes weak. Although due to formation of double bond like character, between metal carbonyl and between metal and carbonyl, the bond between metal and carbonyl strengthens. Example: NiCO4 negative, cobalt CO4 negative, FeCO4 दो नेगेटिव, मान ये कॉम्प्लेक्स, और यदि वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि इनमें से किस एग्जाम्पल में C और O बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, इनमें से किस एग्जाम्पल में कार्बोनिल में C और O बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, सबसे मजबूत बॉन्ड होगा, तो देखिए आप कैसे देखेंगे। सबसे पहले यहां पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और उससे 4 कार्बोनिल जुड़े हुए, यहां कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, जबकि यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन देने की पावर सबसे ज्यादा किसकी होगी? Fe की होगी, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर सबसे ज्यादा होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट इसके बॉन्ड पे आएगा। ये वाला बॉन्ड तो मजबूत होगा, यदि इस बॉन्ड की बात करो तो ये वाला बॉन्ड X जिसको हम बोल रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा मजबूत होगा इन चारों एग्जाम्पल में, पर ये वाला बॉन्ड जो है जिसको मैं Y से रिप्रेजेंट करता हूं, ये सब वीक बॉन्ड होगा इन चारों एग्जाम्पल में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, जब आपसे पूछेंगे किस केस पे कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और कहां पे कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। इस ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी आप कंपेयर कर सकते हैं। यदि आप देखें तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की इस एग्जाम्पल में होगी और सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन टाइटेनियम एंड कार्बोनिल इस एग्जाम्पल में होगी, जबकि इस एग्जाम्पल में C और O के बीच का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होगा, जबकि Cr और C के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड
सबसे कमजोर ना होगा। दिस इज अबाउट दिस सिनर्जिस्टिक अफेक्ट एंड मेटल कार्बोनिल्स। मैं आपको वापस से बताता हूं, यहाँ पे जब Fe पे 2 नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण Fe ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ओर ट्रांसफर करेगा, क्योंकि Fe इस ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, इसके कारण ये वाला बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, जबकि ये वाला तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो इस एग्जाम्पल में Fe और कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, जबकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सबसे कमजोर होगा। यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड सबसे मजबूत होगा, क्योंकि निकेल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति उतनी ज्यादा नहीं होगी जितनी कि कोबाल्ट नेगेटिव और Fe2 नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। देयरफॉर ये कंफ्यूज ही करेगा कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने में। इसका Ni और CO का बॉन्ड वीक रहेगा, जबकि C और O के बीच का बॉन्ड इसका मजबूत रहेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी। अब लास्ट चीज जो बचती है दैट इज, और इसके अलावा एक दो चीजें और, दैट इज अबाउट द that is about this polymeric carbonyl compounds. Now the last thing that I can discuss with you is polymeric OMC, organometallic compound या polymeric metal carbonyls लिख देता हूँ, although it is a type of OMC only. Polymeric metal carbonyls। जहां तक polymeric metal carbonyls का सवाल है, polymeric metal carbonyl में सिंपल एक ही फंडा है कि वहां पर जो है आपके पास पर मॉलिक्यूल मोर देन वन मेटल होता है। सो मोर देन वन मेटल इज प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल, यू कैन राइट दैट more than one metal is present per molecule. Famous example Mn2CO10। Remember that कि ये सारे एग्जाम्पल एक ही चीज पे फिक्स होते हैं, और वो ये है कि आपको जो मेटल के पास है वो अपने मेटल कार्बन में जनरली वो अपने ऑक्टेट को नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर करने की कोशिश करता है। तो Mn के पास 25 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 Mn एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो अब 26 हो गए, और इसके पास CO 5 इलेक्ट्रॉन इधर से, मतलब 5 लोन पेयर यहां से ट्रांसफर कर देगा, तो एक शेयर करके हो गए थे 26 और ये 10 आ गए, तो हो गए कितने 36। नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर हो गया CO, और ये हो गया CO, ये हो गया CO, ये वन मोर CO एंड वन मोर CO। Therefore total electron in Mn2CO10 is 70, whereas टोटल इलेक्ट्रॉन इन Mn2CO10 इज 70 की बात कर रहे हैं हम, जबकि हर Mn के पास 36 इलेक्ट्रॉन है। आप देखें 10 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहां से शेयर कर रहा है। टोटल 25 थे, एक यहां से शेयर किया 26 हो गए, 10 यहां से मिले 36 हो गए। तो ईच Mn कंसिस्ट ऑफ 36 इलेक्ट्रॉन। इट विल नाइदर एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉर विल एक्ट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी आप पॉलीमेरिक कंपाउंड्स को बनाएं तो इसी चीज का आप ध्यान रखें कि क्या वहां पर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर हो रहा है या फिर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल यदि मैं आपसे डिस्कस करूं तो CO2 CO8। CO2 CO8 दिस इज कोबाल्ट। अब कोबाल्ट की यदि आप स्थिति देखो तो कोबाल्ट के पास 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि मैं एक कोबाल्ट और दूसरे कोबाल्ट के बीच में एक बॉन्ड बना दूं तो 28 हो गए, मतलब एक शेयर हो गया 28 हो गए। 4 यदि उसको मिल जाए लोन पेयर तो इसका मतलब 8 हो गए, तो 36 वो स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है। आप समझने की कोशिश करें, स्ट्रक्चर 2 कोबाल्ट के बीच में यूं बना, एक 27 थे 27 थे, एक शेयर किया 28 हो गए। अब इसको 8 की और जरूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। देयरफॉर मैं क्या करूंगा, इधर एक CO लगा दूंगा, इधर एक और CO, इधर एक और CO और इधर एक और CO, यहाँ एक और CO, यहाँ वन मोर एंड देन वन मोर एंड देन वन मोर। क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसलिए नाइदर इट विल एक्ट लाइक ऑक्सीडाइजिंग नॉट लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से आते हैं कि बताएं CO2 CO8 के अंदर कितने बॉन्ड CO बॉन्ड होंगे या फिर CO बॉन्ड होंगे। इसमें बीच वाला CO जो है वो कार्बोनिल है, तो यू विल से दैट 0 CO दैट इज कोबाल्ट कार्बोनिल कोबाल्ट बॉन्ड होंगे।
So this is one of the structures. थोड़ा बहुत इस चैप्टर में कुछ एक दो बातें और मुझे करनी है, दैट आई विल टेक ऑन सब्सिक्वेंट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज ट्रांजिशनल कंपाउंड। हम स्ट्रक्चर बना रहे थे कुछ, तो आज मैं वो स्ट्रक्चर का समअप कर देता हूँ। एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूं उसमें। जैसे कि यदि आप एग्जाम्पल लें Fe2CO9, तो Fe2CO9 जब आप एग्जाम्पल लेते हैं तो आप दिमाग पे एक चीज जो है हमें हरदम याद रखनी चाहिए, वो ये है कि आयरन जो है, आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन है और उसको 36 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो और टोटल मेरे पास जो CO है वो है 9 CO है। तो यदि मैं मान लो 3 CO एक तरफ से फिक्स करता हूं तो 6 इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट उसको मिल जाता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन उसको और मिल जाएंगे। यदि मैं स्ट्रक्चर को जिस तरीके से बनाऊं, प्लान करूं कि एक Fe इधर रख देता हूं, एक Fe इधर रख देता हूं, यदि मैं इधर CO लगाना शुरू करूं और एक इससे डायरेक्ट बॉन्ड बना दूं, मान लो डायरेक्ट बॉन्ड बना दिया तो एक 26 था तो एक और हो जाएगा 27 हो जाएगा, और उसके बाद में मैं CO से बॉन्ड डोनेट करना शुरू करूं तो कितने डोनेट करूं जो यहाँ पे 36 हो जाए। तो 36 करने के लिए एक्चुअली वो फिगर नहीं बन पा रहा, मतलब वो तो इवन नंबर देगा तो 36 नहीं हो पाएगा, या तो 35 होगा या तो 37 होगा, और उस केस पे भी एक आयरन पे हो भी जाएगा तो दूसरे आयरन पे के लिए मेरे पास CO बचेगा नहीं। तो इसके लिए मैं कुछ इस टाइप से करता हूं कि यहां पे मान लो मेरे पास 3 CO है, 1 2 3 3 CO कर दिया यहां पे और 3 CO कर दिया मैंने यहां पर। अब सोचो, अब इस आयरन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 26 प्लस 6, तो 26 प्लस 6 इसके पास हो गया इलेक्ट्रॉन 26 था और 6 इलेक्ट्रॉन्स और आ गया, तो दिस विल बी 32। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन यदि चाहिए इसको, तो मैं बाकी CO को कहां फिक्स करूं, मान लो मैं एक CO और इधर लगा दूं, एक CO इधर लगा दूं, तो इधर कितने हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे 34। और या मैं एक काम कर सकता हूं कि इधर एक CO लगाऊं और U बॉन्ड बना दो, एक CO इधर लगाऊं, U बॉन्ड बना दो, एक CO इधर लगाऊं, U बॉन्ड बना दो। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन हो गए थे 26 और CO9 है, CO9 है, इसका मतलब 9 हो गया टोटल। तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल 32। एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया शेयर, एक इधर से आ गया शेयर और एक इधर से आ गया शेयर, तो टोटल हो जाएगा यहाँ पे 35। तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे CO10 करना पड़ेगा, Fe2CO10, या मैं कैलकुलेट कर लूं एक बार, तो 26 26 प्लस 6 बराबर हो गया 32। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन यदि शेयर करने हैं तो 1 2 3, ये तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए उसने, एक इलेक्ट्रॉन CO से इधर शेयर किया, एक इधर शेयर किया और एक इधर शेयर किया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास अब हो जाने चाहिए 35। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है, तो इसके लिए मैं या तो एक Fe बॉन्ड Fe बना दूं जिससे एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी शेयर कर सकता है। यदि FeCO9 ही है तो मैं एक काम कर सकता हूं, Fe और Fe के बीच में एक बॉन्ड बना देता हूं, और Fe और Fe के बीच में यदि एक बॉन्ड बना दिया मैंने, तो अब एक इलेक्ट्रॉन वो Fe से और शेयर कर लेगा, तो अब उसके पास में 36 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना सकता हूं FeCO9 का, और नहीं तो मेरे को फिर FeCO10 करना पड़ेगा, नोट Fe2CO10 करना पड़ेगा, नोट इट डाउन। Now Fe3CO12, Fe312 का स्ट्रक्चर देखते हैं। जहां तक Fe3CO12 के स्ट्रक्चर का सवाल है, मैं एक Fe यहां लिख देता हूं, एक Fe यहां लिख देता हूं, एक Fe इधर कर देता हूं, 3 CO 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 CO
इसको जो जरूरत है, अब इसके पास हो गए हैं 32 हो चुके, और सीओ जो मेरे पास बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 3 और सीओ मेरे पास बचे हुए हैं। एक सीओ इधर रख देता हूं, एक सीओ, ओके मेरे पास सीओ और भी है तो मैं एक सीओ इधर लगा देता हूं, एक सीओ इधर और एक सीओ इधर। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ऑब्वियसली इसकी ओर। इन सभी के पास 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। 3 सीओ मेरे पास और बचे हुए हैं और 3 सीओ को मैं यहां पे कुछ कुछ फिक्स कर देता हूं। मान लो इस Fe एक ये शेयर हो गया, 26 प्लस 6 32 और एक 33 34 35 और एक यदि इधर लगा दूं तो हो जाएगा 36। इधर भी ऐसा कर सकता हूं, 1 2 3। पर इस केस में एक प्रॉब्लम यहां पे ये, इस Fe के पास कितने हो रहे हैं? इस Fe के पास यदि आप देखें तो इस Fe के पास 2 इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए? 32। और 2 इधर से शेयर कर रहा है वो, तो कितने हो गए? 32 प्लस 2 कितने हो गए? 32 प्लस 2 34। इसको 2 की और जरूरत है। मैं एक काम करता हूं कि यहां पे यदि मैं इस सीओ को हटा दूं, ये बॉन्ड इधर डायरेक्ट बना दूं मान लो, तो ये तीसरा वाला यहां पूरा हो गया। मतलब ये था 32 33 34 35 36 और एक सीओ से यहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनवा देता हूं, इसका भी काम चल जाएगा। ये कितना हो गया? 34 35 36 34 4 आ गए यहां पे, 26 प्लस 8 34 35 36। और यहां पर यदि आप देखो तो ये Fe 32 में था, 33 34 35 36 और ये Fe भी सेम हो जाएगा। इसलिए ये स्ट्रक्चर Fe3CO12 का ज्यादा अच्छा सही स्ट्रक्चर हो जाएगा। नोट इट डाउन।